वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो सेशन है वो जजमेंट डिस्कशन पे है। मेनली आई एम टेकिंग इट फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एओआर एग्जामिनेशन जो होने वाली सुप्रीम कोर्ट में जून के महीने में। See, it is very difficult to read all the judgments and to discuss all the judgments. But few of the judgments are very important, not only for AOR examination, but also from the regular point of view of your practice. Now, first, this judgment we are going to discuss is about Sushila Agarwal versus State. सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इन द सेंस कि इन क्रिमिनल प्रैक्टिस द फर्स्ट थिंग हैपेंस व्हेन द अक्यूज कम्स टू यू हैव टू गो फॉर बेल. इफ इज अरेस्टेड देन यू गो फॉर 437 CRPC. But if he is not arrested, so what do? You try to go for anticipatory bail. So the first step है वो it starts from anticipatory bail. So there were a lot of confusions about anticipatory bail is valid till when. तो anticipatory सुशीला अग्रवाल में जो पॉइंट लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बार अगर एंटीसिपेटरी बिल आपने ले लिया है तो इट इज फॉर एवर, इट इज टिल द एंड ऑफ द ट्रायल. This is the smallest point discussed in this Sushila Agarwal. So for knowing Sushila Agarwal, first you have to read the 438 CRPC. What is 438 CRPC? It gives power to the session court and the high court to grant anticipatory bail to the accused. First you have to appear before the session court, and if your bail is rejected, you go to the high court. In these matters, what happens if anticipatory bail is granted? एंड व्हेन यू गो बैक टू दी सी FIR जब होता है उस समय एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, या फिर सम टाइम दी इन्वेस्टिगेशन आल्सो इन प्रोग्रेस, तो कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम प्रोटेक्शन, दैट इज फॉर इंटरिम प्रोटेक्शन इन द लीगल पार्लेंस. तो व्हेनेवर द एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड, इट वाज वहां पर दो ये था भ्रांतियां थी कि आइदर इट इज टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट or till the summons are served to the accused from the court, till when it is. So Sushila Agarwal, this judgment has kept all this confusion aside and it has confirmed the anticipatory bail is forever till the end of trial. It is not a temporary bail, it is a permanent bail till the end of trial unless and until some conditions are imposed like that. अब इसमें ये क्वेश्चन उठा क्यों? There were two more cases अबाउट एंटीसिपेटरी बेल. मैं कहूँगी एक तो इसका ये महाराष्ट्र का एक केस था, मैत्रे का केस था, सतलिंगापा. उस केस में ऐसे हुआ था कि सतलिंगापा का जो केस था मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुरुबख्श सिंह सिबिया, दिस टू इम्पोर्टेंट केस. ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस था कि एंटीसिपेटरी बेल गुरुबख्श सिंह सिबिया कहता है कि टिल एंड ऑफ ट्रायल, लेकिन सतलिंगा वो मैत्रे का जजमेंट है उसमें ऐसे कहा गया था कि इट इज नॉट टिल एंड ऑफ द ट्रायल, देयर मे बी कंडीशंस. तो ये दोनों का जो कंफ्यूजन था विच हैज बीन नाउ सेट असाइड बाय दिस जजमेंट. तो सुशीला अग्रवाल इज फॉर द एंटीसिपेटरी बेल टिल द एंड ऑफ द ट्रायल. ऑलवेज रिमेंबर anticipatory bail is a permanent bail. So if we are practicing the trial court and if our accused is granted anticipatory bail, then what happens? Sometime when we go back to the charge sheet is filed, the police says or the court asks you to make a bail application again. But as because of the Sushila Agarwal case, now it is confirmed the anticipatory bail is till end of trial unless and until specifically mentioned. Now while reading judgment, you will find some other judgments also. उसमें एक जजमेंट है बिपिन चंद्र भद्रेश बिपिन चंद्र सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. नाउ रिमेंबर दिस जजमेंट इज फॉर व्हाट? सी एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये कहा गया है कि क्यों एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता है. सो जस्ट राइटिंग दिस की दिस इज फॉर परमानेंट will not serve your purpose from the exam point of view. Why anticipatory bail was invented by the parliament? तो उसमें ये कहा गया था कि फॉल्स प्रोसिक्यूशन होता है, कभी कभी पॉलिटिकल राइवलरी होती है, there are sometimes people they put you in jail. तो now there is also अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट भी है कि 41D का नोटिस कंपलसरी है. बट ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल. एंटीसिपेटरी बेल का पर्पस ये है टिल द एंड ऑफ द ट्रायल एंड बिकॉज ऑफ द सुशीला अग्रवाल जजमेंट दिस हैज बीन पुट टू रेस्ट ऑल द मतलब जो भी कंफ्यूजन था. तो द पर्पस बिहाइंड कीपिंग दिस जजमेंट for the your examination, I understand
that those who are appearing for AOR examination, they should be their best lawyer. तो उनको पता होना चाहिए कि anticipatory bail is not for a small period or short period. It is for permanent unless until specifically made. And secondly, when you read this judgment, तो उसका जो purpose है anticipatory bail का, that you should be able to tell to the court. तो when you read उसमें एक if I can share, उसमें एक लॉ कमीशन का ऑब्जर्वेशन है. If I can share, I will try to share. I'm unable to share, but I will find out उसमें कि उसमें लॉ कमीशन का 39.9 करके एक पैरा में एक रिपोर्ट है. वो कहता है कि जब भी why anticipatory bail was invented, if there is a false prosecution या फिर कोई disgrace ला रहा है, purpose is to put somebody in jail. Today only somebody called me from Delhi. उनका किसी रिलेटिव ने की वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया है. In these cases, the marriage survived for 9 to 10 years. Now she was worried कि he will put it the law कि she will वो जो लड़की का डिसीज का फादर है वो बोला I will put you in jail. Now in this matter there was no suicide, not anything. In this case she was asking me whether I can go for anticipatory bail. Of course you can go for anticipatory bail because you have good reasons. There is no suicide note. There is a possibility that the false prosecution is possible. There may be depression, there may be some other reason. There was no complaint 9-10 years. तो false prosecution नहीं होना चाहिए, disgrace नहीं होना चाहिए just by putting you into custody. And there are matters where custodial interrogation is not necessary. This person जिसका ये आज incident आज मुझे दिल्ली में किसी ने बताया, उसमें he has got 2 small children and wife committed suicide. Just imagine in these cases, if anticipatory bail is granted, then it is forever. तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए इफ सुशीला अग्रवाल यू रीड इट तो यूल गेट गुरुबख्श सिंह सीबीआर से लेके आपको जो अभी तक का सारा जजमेंट्स है यूल गेट. तो पर्पस बिहाइंड रीडिंग इज नॉट ओनली टू क्लियर द एओआर एग्जाम होना चाहिए. दिस ऑल मटेरियल विच यू आर रीडिंग फ्रॉम सुशीला अग्रवाल इट विल बी यूज फॉर योर क्रिमिनल प्रैक्टिस एज वेल. नाउ नेक्स्ट केस वी विल टेक ऑफ इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल. नाउ ये केस लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में है. इन आर कंट्री 1894 का एक एक्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट का. नाउ इट इज रिपील्ड एंड रिप्लेस बाय न्यू एक्ट है जिसका नाम काफी लंबा चौड़ा है. द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013. नाउ जो सेंचुरी ओल्ड एक्ट था it was not able to fulfill the today's condition, change condition. क्योंकि पहले जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है अभी 1894 we were under British regime, understand. उस समय लैंड लिया जाता था, अंग्रेज लेते थे. बट देन दे एज द कंट्री को फ्रीडम मिला द सिनेरियो चेंज. नाउ गवर्नमेंट लैंड लेती थी रोड डेवलपमेंट के लिए या फिर डैम्स बनाने के लिए. देयर मे बी 100 ऑफ रीजंस फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोक्यूर द लैंड. बट एज द टाइम बोलते प्रोग्रेस हुआ, टाइम प्रोसीड, तो क्या हुआ देर आर नाउ also the government takes the land to give it to the companies also, private companies also. तो there were the government जो कोर्ट में जो केसेस आते थे ऐसा लगा था कि बहुत अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है एंड जो लैंड ओनर्स थे उनको प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं मिल रहा था. तो इन 2013 दिस न्यू एक्ट के. अब न्यू एक्ट के आने के बाद देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन आल्सो एंड अबाउट दिस आई विल से जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल का जो केस है ये लार्जर बेंच का केस है और ये रेफरेंस पे गया था कोर्ट से ही स्मॉलर बेंच से. तो रिमेंबर कि ये जो केस है ये रेफरेंस से गया था टू डिसाइड सेक्शन 24. अब सेक्शन 24 के जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, सी दिस केस रन्स इनटू 186 पेजेस. It's highly impossible to read and remember everything written in this. But if you remember कि the new act came in 2013, the old act is repealed. New act का complete नाम you should know, which may not be given in the exams. That is one thing important. And what is section 24 interpreted? इसमें जो हुआ है, तो उसमें जो एक छोटा सा चीज कहा गया है, if you take in one liner, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का मनोहर लाल का केस, कि इसमें जो पुराना केस था पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हरकजन का केस था जिसको अभी तक फॉलो करते थे, इट वाज ओवर रूल्ड. उसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट ने अगर कोर्ट में पैसे भर दिए या ट्रेजरी में पैसे भर दिए तो कंपेंसेशन दे दिया गया ऐसे मान लिया गया था. बट नो, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड दिस वाज
या जो छोटा बेंच था, मतलब इसका जो सबऑर्डिनेट बेंच था पहले वाला, उसने बोला कि नो, दिस इज समथिंग हैज टू बी डिसाइडेड बाय द लार्जर बेंच. देन रेफरेंस वाज मेड टू 5 bench judges, and then it was decided no, it can't be done like this, and the section 24 was reinterpreted, I would say. और जो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है वो ओवररूल्ड किया गया, जो अब तक फॉलो किया गया था. एंड देयर वर 2-3 अदर केसेस आल्सो. तो ये लैंड एक्विजिशन का केस है, बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि 2013 का जो एक्ट है उसको इस रिप्लेस करके द फर्स्ट टाइम इट केम विद लॉट ऑफ चेंजेस. सेकेंडली, व्हेन आई रेड दिस जजमेंट, इसमें बहुत सारा मतलब बोल के इंटरप्रिटेशन दिया है, and there are lot of things which need to be, mostly I would say श्याम दीवान सर का बहुत सारा arguments है from landowner side. तो why this act was brought, why this law was changed, he has discussed everything. So if you can take up these things from श्याम दीवान sir arguments, you'll get enough material to put in your AOR examination जो आंसर शीट होगा. क्योंकि सिर्फ इतना सेक्शन 24 लिखने से कुछ नहीं होगा कि उसको इंटरप्रेट किया गया एंड सिर्फ ट्रेजरी में गवर्नमेंट पैसे भर देगी, तो दैट इज नॉट इनफ एंड द प्रोसीडिंग विल नॉट लैप्स. नाउ अगर सेक्शन 24 में अगर मेजर चीज हम लोग देखें तो उसमें 2-3 चीजें, वेयर द अवार्ड हैज नॉट बीन पास, where the award has been passed with 5 years prior to 1st April 2014. See, the new act came from year 2013, लेकिन उसका implementation started on 1st January 2014. तो if you जो award pass होता है, award has not been passed, then this new act will apply. Where the award has been passed with prior 5 years का window दिया है, just 2014 से 5 years आप गिन लीजिए. Then third position दिया है where the award is passed more than 5 years prior to this. तो फर्स्ट दोनों कैटेगरी में तो प्रोसीडिंग है वो लैप्स नहीं होती है, यानी खत्म नहीं होती है, फेल नहीं होती है, बट एंड कंपेंसेशन भी न्यू एक्ट के अनुसार डिटरमाइन होगा. बट थर्ड में जो थर्ड कैटेगरी है उसमें 1894 का एक्ट ही चलेगा. बट देयर अगेन 2 more condition they have put, which थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल पोजीशन ऑफ द लैंड इज नॉट टेकन, गवर्नमेंट ने वो लैंड ली नहीं है और नीदर दी कंपेंसेशन भी पे किया. तो इफ दीज 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो 1894 का एक्ट में वो प्रोसीडिंग लैप्स नहीं होंगी, इट विल सर्वाइव. तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 24 ऑफ द न्यू एक्ट. सेकेंडली, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ओवररूल्ड किया गया वर्सेस हरकचंद. ये दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नो बोथ दिस केसेस, ये मतलब अगर इतना सा भी पढ़ लिया हमने तो यू विल बी एबल टू राइट. प्लस मैंने श्याम दीवान सर का जो आर्ग्यूमेंट्स बोला है, व्हाट आई हैव रेड, इट इज वेरी यूजफुल टू यू टू राइट द आंसर्स कि व्हाई दिस न्यू एक्ट केम एंड न्यू एक्ट क्या बोलता है. नाउ थर्ड जजमेंट, आई होप थर्ड जजमेंट तो सबको पता होगा, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस अरोज आउट ऑफ आर्टिकल 32. और सिर्फ आर्टिकल 32 नहीं, तो इसमें बहुत सारे और भी मतलब लॉज लगेंगे. इसमें सीआरपीसी का सेक्शन 198 भी लगेगा, जिसमें प्रोसीजर दिया गया है हाउ टू मतलब प्रोसिक्यूट, वो भी लिखा है, जो ऑफेंसेस रिलेटेड मैरिज होते हैं. देन वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 497 वाज क्वेश्चन. अब ये रिट पिटिशन ऐसी डली इसमें कि इफ यू रीड सेक्शन 497, वो कहता है सेक्शन 497 में ऐसे कहा गया है कि एक हस्बैंड अगर उसकी वाइफ के साथ किसी और ने somebody आउटसाइड अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो ही कैन प्रोसिक्यूट. अगर उसकी वाइफ को उसने सम्मति दी है तो ही कैन नॉट प्रोसिक्यूट अगर उसके कंसेंट से. तो 497 का व्हेनेवर यू रीड द डेफिनेशन यू विल फाइंड आउट कि इट इज वेरी वन साइडेड. क्यों इतना वन साइडेड है? क्योंकि उसमें जो वुमेन है उसको प्रॉपर्टी चैटल के बोला कि वो प्रॉपर्टी है क्या हस्बैंड की, तो ही कैन प्रोसिक्यूट द अदर पर्सन. लेकिन जो अदर पर्सन है उसकी वाइफ किसी को भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती. सी देयर वाज अ जेंडर बायस अंडर सेक्शन 497, तो इट वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वाज स्ट्रक डाउन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको सेक्शन 497 अभी मतलब आगे पढ़ना नहीं है, पर सेक्शन 497 में क्या मतलब क्यों इस जोसेफ साइन में इतना क्या डिस्कशन हुआ है.
So it is also about the if you read the complete judgment, there are a lot of things where you will find कि women empowerment के बारे में भी बोला गया है. इनफैक्ट ब्रिटेन से भी कुछ, इंग्लैंड के भी कुछ जजमेंट्स में कोट किए गए हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली रिटन बाय जस्टिस दीपक मिश्रा, और काफी ये भी लंबा चौड़ा जजमेंट है. बट इफ यू रीड इट यू विल गेट लॉट ऑफ मटेरियल. एंड योर एग्जामिनेशन में आई हैव ऑलवेज नोटिस कि जो कमिटी होती है उसमें एक वुमेन जरूर होती है, और एक क्वेश्चन तो भी ऐसा आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में होता है. तो 497 के बारे में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, नोबडी कैन आंसर दैट, बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज पॉसिबल कि जोसेफ शाइन के ऊपर कोई ना कोई केस लॉ आएगा ही आएगा ऐसा, या फिर कोई क्वेश्चन आपको मतलब पुट अप किया जाएगा जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखा होगा. तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस जजमेंट. एंड इसमें मेजर जो डिसीजन लिया गया है कि पहले ऐसा था कि मैन विल बी पनिशेबल अगर वो एडल्ट्री करता है, बट वो वुमेन विल नॉट बी पनिशेबल. बट मोर देन दैट मुझे ऐसा लगा है कि ये जजमेंट इसके लिए नहीं बनाया गया था कि मैन और वुमेन में किसको पनिशमेंट करेंगे. इट वाज स्ट्रक डाउन ओनली ऑन द पॉइंट कि ये डिफरेंशिएट करता है कि वुमेन एडल्टरी करती है, द पॉइंट विच इज डिस्कस इन दिस जजमेंट. तो वो उसको तो पनिश नहीं किया जाता है, व्हाई मैन इज पनिश. एंड while reading this judgment there is one more thing which I came across, and in regular practice also you will come across. अगर कोई सुसाइड का केस बनता है 306 आईपीसी में, जैसे आज का केस बना है, तो उसमें अगर आज मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, तो देयर इज वन जजमेंट ऑफ पिनाकिन महिपतराय रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. इसमें कहता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैन नेवर बी इन एक्ट ऑफ कमीशन ऑफेंस ऑफ क्रूअल्टी. मतलब 306 जो आत्महत्या का सेक्शन है, सुसाइड का सेक्शन है, बट वो कभी भी इसमें काउंट नहीं किया जा सकता. आई हैड अ केस इन सेशन कोर्ट जिसमें जज टोल्ड मी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे वो लेडी ने सुसाइड कमिट कर लिया था, एंड दैट वाज द ओनली रीजन गिवन बाय हर. बट इवन लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इटसेल्फ कैन नॉट बी अ रीजन ऑफ द ओनली क्रूअल्टी. ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे क्रूअल्टी, हिंदू मैरिज एक्ट इफ यू रेफर, इट इज अ रीजन फॉर फाइलिंग डिवोर्स फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. एंड हस्बैंड को भी दिया गया है, दोनों को इक्वल राइट दिया गया है. बट व्हेन यू कम टू द इंडियन पिनल कोड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सिर्फ हस्बैंड प्रोसिक्यूट कर सकता है, वाइफ प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती है. तो ये जो एनामोली है, ये विसंगता थी, वो निकाली गई इस जजमेंट से. तो ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर कि ये जजमेंट हमको इसलिए पढ़ना है कि दिस जजमेंट विल बी यूज फॉर अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आया है और एग्जाम से जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना है, तो दिस विल बी मोस्ट यूजफुल जजमेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू. एंड इसमें आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ये तीनों आर्टिकल का रेफरेंस दिया गया है. एंड व्हेन यू राइट एन आंसर, दिस बोथ 3 आर्टिकल्स you have to mention in your answers. If you are unable to mention these articles, and article 32 में जो ये रीड डाली गई है तो बहुत डिफिकल्टी होगी. तो these are also important. and the word की जो इसका की वर्ड्स है, erring man will be punished but erring woman cannot be punished. तो ये जो एनामोली थी वो इस जजमेंट के द्वारा निकाली गई. और जो जेंडर बायस था, ये जो सेक्शन 497, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के इसको रद्द कर दिया गया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया. तो दिस वाज ऑल 3 जजमेंट. all 3 judgments are very deep and very important from the AOR examination point of view, also in regular practice also. जैसे लैंड एक्विजिशन का अगर आपके पास कोई भी मैटर आता है तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस पढ़ना ही पढ़ना है. जो सिर्फ शाइन अभी 497 आपको लगेगा नहीं कभी भी, बट द वे इट इज इंटरप्रेटेड, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और बहुत सारे कंट्रीज में 497 मतलब जो एडल्टरी है, इट इज नो मोर एन ऑफेंस. बट इंडिया में ये जजमेंट अभी अभी आया है, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है ऑल्सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि 497 में अभी ऑफेंस रजिस्टर तो नहीं हो गए, बाइगे में भी हो गए, लेकिन 497 में नहीं हो गए. तो इसका एकेडमिक नेचर हमेशा रहेगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और सुशीला देवी अग्रवाल का जजमेंट तो फॉर एवर, दोज हु आर इनटू